और आज हम बात करेंगे एक भाई के ऊपर जो कि सरदार है और अपने आप को बोल रहा है कि मैं सिख हूँ। वे एक ऐसी टीम को जो पर्चे बांट रहे लोग उन टीम को तंग कर रहा है और पूरा भला कह रहा है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਤੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਦੱਸ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਝਗੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬੈਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ। ਦੌੜ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਚਿੱਟੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ आ के डिबेट करो बाइबल पे। फेसबुक पर एक भाई शायद वो पागल था और वो पागल भाई जाकर अंदर जाकर उसने गुरु ग्रंथ साहब जी को क्या कर दिया, फाड़ दिया। किसी और भाई को मैटर नहीं है, मेरा सिर्फ मैटर यह है कि मैं इसको जवाब दे सकूं। एक पीछे मैंने एक वीडियो देखी और यहाँ पे हमारे गुरुद्वारे हैं और आप लोग प्रचार ना करें। क्या ये सही है आज के समय में? आज हम देखेंगे पवित्र बाइबल से और हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे उसी के गुरु ग्रंथ साहब से। जिसके कान हो वे सुन ले, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं पर सच्चाई बताना है। कृपया हमारा वीडियो वही देखें जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं। आमीन। खुदावन यहोवा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हमें इस योग्य समझा के प्रभु के वचनों से देखें। और आज हम बात करेंगे एक भाई के ऊपर जो कि सरदार है और अपने आप को बोल रहा है कि मैं सिख हूँ और यहाँ पे हमारे गुरुद्वारे हैं और आप लोग प्रचार ना करो। वे एक ऐसी टीम को जो पर्चे बांट रहे लोग उन टीम को तंग कर रहा है और पूरा भला कह रहा है। क्या ये सही है आज के समय में? आज हम देखेंगे पवित्र बाइबल से और हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे उसी के गुरु ग्रंथ साहब से। पहले मैं आप लोगों के लिए एक वचन बोलना चाहूँगा इस टीम के लिए भी, और जितने लोग बाहर प्रचार करने जाते हैं वे जरूर इस वचन को सीखें ताकि उनके काम आ सके। अब हम वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ उसे पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। सबसे पहली बात, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए जवाब देने के लिए। उन लोगों से ये भाई चैलेंज कर रहा है कि जिसको बाइबल का पूरा ज्ञान है वे मेरे सामने आ जाए। अभी मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में देखो वे कितना बुरा भला कह रहा है। उसके बाद हम गुरु ग्रंथ साहब की बातें करेंगे। वीडियो देखो। परमिशन आए थे टोंग का एरिया ही नहीं है। हाँ जी, टोंग मसीह भाईचारे ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫੜੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਬਲੋ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਤੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਦੱਸ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਝਗੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬੈਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ? ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਕੋਈ ਢਾਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਖਾਓ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਟੌਂਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਜੁੜੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਂਗ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਟੌਂਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲੇ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਵਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਕੋਖਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨੌਲੇਜ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨੌਲੇਜ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਕਰਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਓ ਕਰਵਾ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨੈਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੌੜ ਜਾਓ ਫਿਰ ਦੌੜ ਜਾਓ ਬਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਓ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕਟਾਪਾ ਚੜ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਰਤੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਹਿਣੇ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਬਸ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਚੱਲੇ ਆ ਗੱਲ ਖਤਮ ਦੌੜ ਜਾਓ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਆ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਚਿੱਟੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੂ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡੱਚਦੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜੀਏ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ वीडियो देख लिया आप लोगों ने और इस वीडियो में आपने देखा कि इस भाई ने कितना बुरा भला कहा इस टीम को और कितनी अपने आप को यानी अपने आप को इतना दिखा रहा है कि जैसे कि इसको पूरा बाइबल का ज्ञान है। उसको पहली बात तो अपने गुरु ग्रंथ साहब का ही ज्ञान नहीं, अपनी भी बातों का ज्ञान नहीं, क्योंकि जितनी मैं बातें करूंगा वो सब में एक्सपोज होगा। आज इसका चैलेंज इसी पर भारी पड़ेगा। अब हम देखेंगे गुरु ग्रंथ साहब की बातें जो कि इसने बोली हैं और जिसमें ये खुद को अपने आप को एक्सपोज करेगा। आज हम देखेंगे यदि हमें किसी बात का ज्ञान है तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए। पहली बात, यदि इसको ज्ञान है तो उसको घमंड नहीं करना चाहिए था जैसे कि वो कर रहा है। अब मैं इसी के बारे में पढ़ना चाहूंगा तो उसका बल्कि भी नम्र रहना सीखे। यानी कि यदि आपको ज्ञान है किसी बात का, किसी के बाइबल का या आपके अपने गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान है तो आपको भी नम्र यानी कि बिल्कुल शून्य होकर रहना सीखना चाहिए। अपने आप को कभी भी बड़ा बनना ना सीखे। यहाँ पे क्या लिखा है, मन तो मत मानू करिए जी आऊं कुछ जानदा गुरु मुख
निमानु हाऊं। इनके गुरु ग्रंथ साहब के पेज नंबर 441 में लिखा है कि यदि तू कुछ जानता है तो अपने आप को ऊपर या अपने आप को बड़ा ना मान। यदि ऐसा तू करता है तो आप अपने ही गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से नीचे हैं। और आप अब चेक कर सकते हो क्या इसमें ज्ञान है, क्या इसमें कहीं पे भी इसके अंदर ये बात पाई जाती है। यदि नहीं तो ये कौन सा ज्ञान की बात कर रहा है। दूसरी बात क्या लिखी है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। अब ये खुद ही बुरा कह रहा है, उनको कितनी बुरी बुरी बात कह रहा है। वो किसी प्रधान से या पता नहीं एमएलए से वो बात करवा रहे हैं और वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे खून को उठाकर झोंने में यानी कि कनक के खेत में घेर दूंगा। बताओ, ये बुरा नहीं कह रहा तो क्या कहेगा। और वो बोल रहा है उनको मारने तक की धमकियां दे रहा है। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, है ना। तो ये अपने आप को क्या कह रहा है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए क्योंकि सब में वे परमात्मा मौजूद है। यदि ये गुरु ग्रंथ साहब के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। इसको किसमें पढ़ेंगे, मंदा किसको आखिए जा सबना इको खुदाई, यानी कि सब के अंदर सब में एक ही परमात्मा पाया जाता है। तो अब किसको बुरा कहें, किसको कहें बुरा। यदि इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब की बातें हैं, ज्ञान है, जैसे कि ये चैलेंज कर रहा है जिसको पूरी बाइबल का ज्ञान है वो मेरे सामने जाए। अगर अब उल्टा मैं इसको चैलेंज करता हूँ, यदि इसको गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान है तो वे मेरे सामने आ जाए, मैं इसको जवाब देने के लिए तैयार। आ जाए मेरे सामने, ये स्क्रीन पर मेरा नंबर देख सकता है। यदि इसके पास ये मेरी वीडियो पहुंचती है तो मेरे साथ बैठकर आमने सामने बात कर सकता है। इसको मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाए मेरे सामने। किसी को जोर जबरदस्ती परेशान करना जुल्म है, इसका हिसाब रब को जरूर देना पड़ेगा। यदि आज ये भाई यदि इसके पास ये वीडियो पहुंचती है तो इसको मैं बताना चाहता हूँ, किसी को भी जबरदस्ती बुरा भला नहीं करना चाहिए, किसी को भी परेशान करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं के गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, कबीर जोरू कियो सो जुल्म है लेऊ जवाब खुदाई, यानी कि हर एक व्यक्ति को खुदा को हिसाब देना पड़ेगा। यदि भाई आप जबरदस्ती से उन्हें बोल रहे हो कि भैया प्रचार ना करो तो आप जुल्म कर रहे हैं और आपको हिसाब देना पड़ेगा। और इसको ये पढ़ सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी की पेज नंबर 1375 में। और दूसरी बात ये क्या कह रहा है यहाँ पे, आप लोग सभी सिख हैं, यानी कि आप पर्चे बांट रहे हो और हो आपका सिख, यानी कि एक जाति का घमंड कर रहा है। यहाँ पे लिखा है, जाति का अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सब एक ही जाति एक ही रब के पैदा किए हुए हैं। यानी कि खुदा ने, परमेश्वर ने सबको एक ही जाति में पैदा किया है और एक ही खुदा ने पैदा किया है। हक्कड़ जाति हकड़ू नाऊ सबना जियो इको छाऊं, यानी कि जितने भी आज लोग हैं वे सब एक ही छांव के नीचे जी रहे हैं। तो कहाँ पे यहाँ पे जाति के बारे में लिखा है या बोला है कि ये जाति बड़ी है या वो जाति बड़ी है, ये कहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग? इस चीज को आप कहाँ पे पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं इस चीज को पेज नंबर 83 में, गुरु ग्रंथ साहब जी के पेज नंबर 83 में इस चीज को पढ़ सकते हैं। पांचवी बात, मैंने अब तक 4 बातें बोली और मैं लास्ट बात, 5वीं बात को बोलकर आपको यहाँ पे इस वचन को समाप्त करने की, इस वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। यदि मन को निर्मल नहीं किया तो बाहर से धार्मिकता का अभ्यास करना का भी कोई लाभ नहीं। यानी कि यदि अंदर से हम अच्छे नहीं हैं, अंदर से अगर हम साफ नहीं हैं तो हमें बाहर से अपने आप को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आज अगर हम छोटी सी बात अगर कोई हमें बोल देता है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को इतना अभिमान से, घमंड से भर लेते हैं, उसको मार कर हम काट देते हैं। इतना यानी कि हमारे अंदर अभिमान है। यहाँ पे साफ लिखा है, यदि मन को ही शुद्ध नहीं किया तो बाहर से आप जा कुछ भी पहरावा पहन लो, जो मर्जी अपने आप को दिखा लो, पर आप लोगों का कोई फायदा नहीं है। इसको हम क्या कहाँ पे पढ़ सकते हैं? मन अन्न त्रो मली निर्मल नहीं किया बाहरी भेष उदासी, यानी कि बाहर से यदि हम अंदर से अगर मन नहीं सही किया तो हमारा बाहर का जो भेष है
वो हमारे ही लिए उदासी का कारण बनेगा। जैसे कि आज अगर ये वीडियो इस भाई तक पहुंचती है तो ये वीडियो के द्वारा ये खुद ही उदास और एक्सपोज हो जाएगा। अगर हम ये वचन को हम कहाँ पे पढ़ सकते हैं, इनके यानी कि इस चीज को हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इन्हीं के गुरु ग्रंथ साहब जी के 525वें पेज में। अब मुझे लगता है आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मेरे पास बहुत सी बातें लिखी हैं, पर मैं ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। आज अगर देखो, मेरा किसी और भाई से मैटर नहीं है, मेरा सिर्फ मैटर यह है कि मैं इसको जवाब दे सकूं। एक पीछे मैंने एक वीडियो देखी, हमारे पास व्हाट्सएप पे आई थी फेसबुक पर। एक भाई शायद वो पागल था, और वो पागल भाई जाकर अंदर जाकर उसने गुरु ग्रंथ साहब जी को क्या कर दिया, फाड़ दिया, और सबने इकट्ठा होकर उस भाई को जान से मार डाला। मैं आपको वो वीडियो दिखा सकता हूँ। और अगर हम अपनी बात करें, हमारे मसीह लोगों को मारा जाता है, चर्चें तोड़ी जाती हैं, बाइबलें फाड़ी जाती हैं, बाइबलें जलाई जाती हैं, फिर भी हम उल्ट कर जवाब नहीं देते। कौन बड़ा है, हम बड़े हैं या ये बड़े हैं? आज हमें सोचने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है, सब लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो इस भाई तक पहुंचे और ये मुझसे आकर चैलेंज को स्वीकार करे, ताकि मैं इसके साथ बैठकर इससे बातें कर सकूं। इसने हमें चैलेंज किया था, यदि किसी को बाइबल का ज्ञान है तो वे मेरे सामने आ जाए। अब मैं उल्टा इसको चैलेंज करता हूं, यदि आपको गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान है तो आप मेरे सामने बैठकर बातें कर सकते हो। ये मेरा नंबर है स्क्रीन पर, आप मुझसे पर्सनल पे बात कर सकते हो मेरे साथ। तो यदि कहीं पे आप कहना चाहते हो मेरे साथ आकर यहाँ पे बात कर, मैं वहां पर भी आकर उससे बात करने की कोशिश करूंगा और जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबको जय मसीह की परमेश्वर आशीष करें।